Hello and welcome everyone. In today's session, we would be learning the solution of exercise question of chapter number 2 of NCERT Chemistry class 12. It consists of 41 questions, so the video will be a little longer. So be patient and stay with the video till the end. All the best. And the first question is 2.1, that is define the term solution. How many types of solutions are formed? Write briefly about each type with an example. So it is very simple question. We define the term solution. Solution is a kind of homogeneous mixture, and all these terms are mentioned in the introduction section of this chapter, which I have already discussed during the session. So this is the homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of two or more than two component. Then the next part is how many types of questions are there. The type of solutions. So type of solution, it is mentioned here: gaseous solution, liquid solution, solid solution. It depends on the nature of the solvent. If the solvent is gas, then gaseous solution. If solvent is liquid, the liquid solution. Then solvent is solid, the solid solution. And these are the examples. So from this section you can just draw the answer of this question. Now question 2.2, give an example of a solid solution in which the solute is a gas. So they are example if the solute is a gas. So and the question is solid solution. So this is solid solution and gas in solid. So solution of hydrogen in palladium. So this is the example. It is already written in your textbook. Now on the next part, 2.3, define the following terms: mole fraction, molality, molarity, mass percent. And all these kind of the consumption terms I have discussed in my previous videos. तो मैं उसके लिए आपको आई सेक्शन में शेयर कर दूंगा लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलारिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, मास परसेंटेज क्या है. बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चंस के नंबर बहुत ज़्यादा हैं. आप देख सकते हैं 41 क्वेश्चंस आर देयर एंड सबको डिस्कस कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4, concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is given? So first of all, मैंने आपसे हमेशा कहा कि जो भी given चीज़ है उनको आप लिख लीजिए. जैसे इसमें लिखा है 68% nitric acid by mass. So हमारा जो mass given mass of नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के जो मास की ये बात कर रहा है, इट इज़ 68% मीन्स हमने अगर सोल्यूशन को पूरा 100 ग्राम का माना हुआ है तो इट इज़ 68 ग्राम. देन व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर. अगर ये सोल्यूशन वाटर में है तो ये इसका माइनस करके 100 से जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 32 ग्राम का हमारा वाटर का मास हो जाएगा. ओके. देन क्वेश्चन है कि मोलारिटी हमें निकालनी है इसकी, कि व्हाट इज़ द मोलारिटी ऑफ द सैम्पल अगर इसकी डेंसिटी आपको दे दी गई है. तो दूसरी चीज़ एक और क्या दी हुई है, डेंसिटी. इट इज़ 1.504 ग्राम पर ml. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है और आप इनका मोलर मास भी आप निकाल लोगे, मोलर मास ऑफ HNO3 एंड मोलर मास ऑफ वाटर. तो ये तो 18 ग्राम आपको पहले से याद होगा, और जब आप नाइट्रिक एसिड का निकालोगे सारी वैल्यूज पुट करके तो 63 ग्राम आएगा. ओके. सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मोलारिटी. मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ओके. सो वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकाल लोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास करके. ओके. तो यहाँ से आप गिवन मास 68 था और मोलर मास 63 था, बट वॉल्यूम आपको नहीं पता है. वॉल्यूम के लिए आपको एक हिंट दी गई डेंसिटी. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा, पर ये डेंसिटी सोल्यूशन की है तो हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा हमको सोल्यूशन का, और मास किसका रखना है वो भी सोल्यूशन का रखना है. तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.504 मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ रखेंगे हम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो हमें चाहिए. ओके. तो मास ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको पूरा 100 ग्राम माना हुआ, तो इट इज़ 100 डिवाइडेड बाई V. देन V इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1.504. तो इस V को आप यहाँ पुट कर दीजिए 100 1.504, और क्योंकि ये डेंसिटी पर ml थी तो ये भी ml में वॉल्यूम आएगा, इसलिए इसको 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा. ओके. तो ये तो हो गया 2.4 क्वेश्चन का हिंट. सारे क्वेश्चंस के सिर्फ हिंट ही देंगे हम, अल्टीमेट आंसर तक जिसका इसकी ज़रूरत पड़ेगी उन्हीं को ले जाएंगे, सबको नहीं ले जाएंगे. ओके. तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2.4. अब हम बढ़ेंगे 2.5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2.5. 2.5
A solution of glucose in water is labeled as 10% mass by mass. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of the solution is given, then what shall be the molarity of the solution? तो अगेन जहाँ पर भी परसेंटेज का क्वेश्चन दिया जाता है हम उसको 100 में मान लेते हैं सोल्यूशन को, और इसमें लिखा है सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10%. 10% मीन्स यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज आपको जो लिखना है वो हो जाएगा 10 ग्राम का. देन मास ऑफ आपका जो वाटर हो जाएगा वो 90 ग्राम हो जाएगा. ओके, देन अगेन मोलर मास इसका और इसका दोनों का मोलर मास आप निकाल लीजिएगा. ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 आई थिंक जो भी आ रहा है 180 ग्राम ही आएगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. इसका 180 ग्राम आ जाएगी वैल्यू, और वाटर की आपको 18 ग्राम. ओके, तो जस्ट पुट द वैल्यूज 12 × 6 + 12 + 16 × 6. ओके, सॉल्व करेंगे तो जितना भी आ रहा होगा 180 आएगा मेरे ख्याल से, उतने आप रख दीजिएगा. उस हिसाब से आपको यहाँ से देन व्हाट वुड बी द मोलालिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलालिटी आपसे पूछी गई है. मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए 10 ग्राम का ग्लूकोज है और उसका जो भी मोलर मास आप निकाल रहे हैं वो मोलर मास रखेंगे. देन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आपने लिखा है 90 ग्राम, और क्योंकि ग्राम में इसलिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मोलालिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे जो भी वैल्यू आ रही हो. देन नेक्स्ट पार्ट इज मोल फ्रैक्शन. हमें उसका मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, यानी x निकालना है. मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो क्योंकि दो ही कंपोनेंट अगर आपको एक का मिल जाता है ग्लूकोज का अगर आप निकाल लेते हो तो 1 माइनस कर दोगे तो वाटर का मिल जाएगा. तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज. ओके, सो number of moles of glucose again 10/180 given mass upon molar mass. यहाँ वाटर की जब बात करेंगे तो given mass upon molar mass ये रखेंगे, और हम यहाँ पर चाहें तो 10/180 रखें और चाहें उसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यू दी है इसलिए रखने में कोई बुराई नहीं है. आप वैल्यूज पुट करो और इसको सॉल्व करो तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा. इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक इसको सॉल्व करना आप सबको आता होगा. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे करना पड़े. तो ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. देन वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो ये 1 माइनस x ग्लूकोज की हेल्प से आप निकाल लोगे. ओके, तो इस तरीके से आपका वाटर का भी आ जाएगा मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट है मोलारिटी. तो मोलारिटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालने के लिए अगेन 10/180 की वैल्यू हम रख के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करेंगे. बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए जिसके लिए आपको डेंसिटी दे दी गई है. ओके, डेंसिटी इस क्वेश्चन में दी है 1.2 ग्राम पर ml एंड दिस डेंसिटी इज ऑफ द सोल्यूशन. तो अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. मास क्योंकि हमने इसको 100 ग्राम का माना हुआ है तो 100 ग्राम का मास हो जाएगा, और डेंसिटी की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इस क्वेश्चन में 1.2 ग्राम पर ml. अगेन ये वॉल्यूम जो आ रहा है वो आपको किस में मिलेगा ml में मिलेगा. वैल्यू जो आ रही है इसको उठाइए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या था 10/180 डिवाइडेड बाई ये जो आप निकाल रहे हो यहाँ से वॉल्यूम, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए. तो 100 डिवाइडेड बाई 1.2 इट इज़ इन ml, दैट्स व्हाई इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1000. इससे आपको सारी मोलालिटी मिल गई, मोल फ्रैक्शन मिल गया, देन मोलारिटी मिल गई. सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. 2.6 क्वेश्चन नंबर 2.6. how many ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaSCO3 containing equimolar amount of both. तो इसमें ये बोला गया है कि 0.1 मोलर का HCl है. आपसे पूछा गया है कि कितने ml का हमें सोल्यूशन बनाना होगा जिसमें 1 ग्राम का ये दोनों कंपाउंड का मिक्सचर है जो कि इक्विमोलर है. ओके, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है और दोनों का मास 1 ग्राम के बराबर है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम मास को लेट कर लेंगे. लेट द मास ऑफ द Na2SO3. तो हमारा जो पहला होगा लेट द मास ऑफ Na2. मैं पूरा सोल्यूशन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ. अगर इसको मैंने x माना है तो देयरफॉर मास ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल मास 1 ग्राम दिया था तो इट इज़ 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा. ओके, देन ये बोला गया कि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो
बराबर है, तो इसका भी मोलर मास आप निकालेंगे, इसका भी मोलर मास निकालेंगे। निकालना आसान है, सोडियम का 23 रखेंगे, कार्बन का 12 रखेंगे और 16 रखेंगे ऑक्सीजन का। फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, जो भी मोलर मास आ रहा होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को। ओके, तो इसकी वैल्यूज़ को अगर मैं आपको बताऊँ कि कितना आ रहा है, तो 1 मिनट। तो मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट N2CO3 का आएगा 106 ग्राम और आ जाएगा NaHCO3 का 84 ग्राम। तो आप वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन दी है कि ये इक्विमोलर है, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaSCO3, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो गिवन मास हमने इसको x माना था, तो x अपॉन 106 इज इक्वल टू, हमने इसका मास 1 माइनस एक्स माना है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 84। फिर इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे। x के लिए सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आ रही हो। ओके, उस x की वैल्यू को आप इन जगहों पर पुट कर देंगे और आपको दोनों का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, तो जो भी आप चाहे यहाँ x की वैल्यू पुट करिए, चाहे यहाँ x की वैल्यू पुट करिए, दोनों सेम आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है हाउ मनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। इसका मतलब है हमें वॉल्यूम निकालना है मोलैरिटी में। तो अगेन मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम निकालना है, मोलैरिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, किसके चाहिए, सल्यूट के चाहिए। सल्यूट कौन है, ये दोनों हैं, यानी कि इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो इस पूरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमको दोनों का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। अब हम आएंगे उस रिएक्शन पे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये बना रहा है 2, इसको हम बैलेंस फॉर्म में ही लिखेंगे, 2 NaCl बनाएगा और H2O निकलेगा और CO2 निकलेगा। ओके, आई थिंक दिस इज बैलेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा है NaHCO3, ये भी वही करेगा, HCl के साथ रिएक्शन, NaCl बनाएगा, देन H2O निकलेगी एंड व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना सोडियम कार्बोनेट चाहिए। क्योंकि ये तो जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, ये तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स था ना 1 ग्राम मिक्सचर के हिसाब से। पर अब हमको ये पता लगाना है कि HCl के हिसाब से हमें कितना सोडियम कार्बोनेट चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो 2 मोल HCl से रिएक्ट करने के लिए हमने 1 मोल Na2CO3 की ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसे इसके हिसाब से 1 मोल ऑफ Na2CO3 reacts with 2 मोल ऑफ HCl। ये स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। देयरफॉर जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा और ये जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा ये अराउंड आपका 0. मैं इसको भी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ओके, तो x के बाद हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स आपको सीधे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ अलग से। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहे हैं वो 0.00526 के अराउंड आएगा। आप भी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो अब इसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है। तो 1 मोल Na2CO3 से 2 मोल अगर HCl रिएक्ट करता है, देयरफॉर 0.00526 मोल Na2CO3 से क्या होगा, 2 इंटू 0.00526 मोल Na2C मतलब रिएक्शन 1 मोल के साथ अगर 2 मोल HCl की रिएक्शन हो रही है तो 0.0256, तो इतने मोल HCl यहाँ पे रिएक्ट करेगा। ओके, सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे। सिमिलरली इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए तो 1 मोल NaHCO3 1 मोल HCl से रिएक्शन करता है। इट मीन्स 1 मोल ऑफ NaHCO3 reacts with 1 mole HCl. Therefore 0.00526 मोल NaHCO3 कितने से रिएक्शन करेगा, 0.00526 मोल HCl से ये रिएक्शन करेगा। ओके, तो एक तो नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 के साथ इतना मिला HCl का और NaHCO3 के साथ इतना मिला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl is equal to 0.00526 plus 2 into 0.00526। ओके, ये मिला NaHCO3 के थ्रू और ये मिला आपको Na2CO3 के थ्रू। जब दोनों को आप सॉल्व कर देंगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01578 मोल। ओके, ये जो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, अब सीधे इस मोलैरिटी का हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, 0.01578 मोल नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब सीधे इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले में आप इसको n की वैल्यू को पुट करिएगा। ओके, वॉल्यूम आपको निकालना है तो V इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन m। m की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, इट इज़ 0.1। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल रखा है 0.01578 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी आपको 0.1 दी गई है। इसको आप सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगेन इसमें क्या चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो वॉल्यूम आ रहा है उसकी यूनिट का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यूनिट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यूनिट को करेक्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये तो इस तरह से क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2.6, ये 2.6 था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चंस को डिस्कस करने में। 41 क्वेश्चंस हैं, इसलिए फटाफट सारी वैल्यूज़ को पुट करना सीख लीजिए। नेक्स्ट 2.7, अ सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. Resulting solution का mass percent निकालना है। तो 2.7 में हमें mass percent निकालना है और mass percent का फॉर्मूला भी जो है वो हम पहले हालांकि पढ़ चुके हैं। mass percentage इक्वल टू होता है mass of solute upon mass of solution into 100। ओके, तो मास ऑफ सल्यूट निकालने के लिए और मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें इसमें हिंट दिया गया है कि 300 ग्राम का 25% एंड 400 ग्राम का 40%, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो हम क्या करेंगे, 25% ऑफ 300 ग्राम जब निकालते हैं तो 300 का 25% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट लिखा हुआ है 40% ऑफ 400 ग्राम, तो 400 ग्राम का 40%। ओके, तो इस तरह से इसके टोटल इसके मासेस आ जाएंगे। इनके मासेस कितने आ जाएंगे, 75 ग्राम आ जाएगा इसका, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 160 ग्राम आ जाएगा। तो ये तो हो गया सल्यूट का मास। ओके, अब मास परसेंट निकाल लेते हैं। मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट कितना है, 75 प्लस 160 डिवाइडेड बाई, और सॉल्वेंट कितना है, सॉरी यहाँ पे सोल्यूशन कितना है, मास 300 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, वैल्यूज पुट करिए, फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट 2.8 पे आते हैं। 2.8, एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये आपको W2 दिया हुआ है, ये W1 दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलैरिटी बताना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस देन द मोलैरिटी। अगेन द सिमिलर क्वेश्चन जो इससे पहले हम कर चुके हैं कई बार, कि आपको इसमें मासेस दिए गए हैं। मुझे लगता है ये भी बहुत आसान है, बहुत कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आपको मास W2 दिया हुआ है जो कि इथाइलिन ग्लाइकॉल है, 2.6 ग्राम। इसका आप M2 फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या दिया है, C2H6O2। ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं कैलकुलेट करूँगा, टाइम नहीं है। W1 इज इक्वल टू 200 ग्राम। ओके, ये भी दिया है क्वेश्चन में, और M1 हम निकाल लेंगे क्योंकि ये वाटर है तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देन पूछा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है आपको। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, क्योंकि ग्राम में ही सब आ रहा है तो उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ये दिया है, मोलर मास आप फॉर्मूले को रख के निकाल लीजिएगा, एंड ये हो जाएगा 200 ग्राम जो W1 है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 200 into N2। सारी वैल्यूज पता होगी आपको, W2 ये पता है, M2 भी आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट है देन मोलैरिटी भी इसकी निकालनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अगेन N2/V होता है इंटू 1000। अगर ml में वॉल्यूम है तो
बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे डेंसिटी दी गई है। अगेन डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। पर ये सोल्यूशन का मास होगा, तो सोल्यूशन का मास कैसे आएगा, सॉल्वेंट और सॉलिड को हम ऐड करेंगे। ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, यानी कि 2.6 सोल्यूट हुआ, 200 सॉल्वेंट हुआ, ये हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है 1.072, ओके। तो वी के लिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एमएल में ये वॉल्यूम आ जाएगा, इस वॉल्यूम को यहाँ उठा के यहाँ पे पुट करिएगा और यहाँ से मोलारिटी मिल जाएगी, ओके। ये मोलारिटी थी और ये मोलारिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 2.9। क्वेश्चन नंबर 2.9। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 parts per million by mass. Express this in percent by mass. बहुत आसान है। तो इसमें लिखा है 15 ppm। 15 ppm का मतलब होता है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये इसका मतलब है, ओके। तो आपको मास मिल गया, ये हो गया W2 15 ग्राम। देन आप M2 निकाल लोगे, CaCl3 का फॉर्मूला रख के, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और 35.5 क्लोरीन का होता है, उसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। देन पूछा एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। पहला पार्ट हमारा है मास परसेंट निकालना है। मास परसेंट का मतलब मास ऑफ सोल्यूट जो हमें 15 ग्राम बताया गया है, और सोल्यूशन का मास कितना है 10⁻⁶ है, ओके। क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी 15 ppm का मतलब आपको समझा दिया है। देन परसेंट निकालना था तो उसको हमने ऐसा रख के सॉल्व कर लिया। सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा। देन सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। मोलालिटी निकालना है आपको, मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म। तो मोलालिटी M इज इक्वल टू N2 अपॉन वेट होता है W1 इंटू 1000। N2 कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, CaCl3 का जो भी मोलर मास आता हो M2। W1 कितना हो जाएगा 10⁻⁶, क्योंकि ये सोल्यूशन का मास है, पर इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट सोल्यूट का अमाउंट बहुत लेस है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 10⁻⁶ ग्राम ही रखेंगे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, अल्टीमेट आंसर तक चले जाएंगे, ओके। फटाफट आप रखेंगे, वैल्यू समझ में आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकालेंगे। ये मोलर मास किसका है, क्लोरोफॉर्म का है, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। देन ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन के बराबर क्यों है, क्योंकि हमने ये देखा कि 15 ग्राम 10⁻⁶ ग्राम के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने 10⁻⁶ ही रखा है इसमें और उसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट 2.10, ये हम 9 क्वेश्चन ही कर पाए हैं और टाइम 20 मिनट से ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट 2.10, व्हाट रोल डज द मॉलिकुलर इंट्रैक्शन प्ले इन ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो किस तरह का क्या रोल प्ले करते हैं जब हम अल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं। तो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो इसमें इंट्रैक्शन जो होगा वो वीक हो जाएगा अल्कोहल और वाटर के बीच में, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अल्कोहल में वाटर बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। पर जब दोनों का आपने मिक्स किया तो इनका इंट्रैक्शन आपस में वीक हुआ, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन वीक हो गया, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ओके। मतलब नंबर ऑफ वेपर्स घट जाएंगे सोल्यूशन के इन कंपेरिजन टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो हमने पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा भी हुआ है। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप आई लिंक में जाके देख लीजिएगा, इसका वहाँ पे लिंक में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट 2.11, व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर रेज। तो ये भी हमने हेनरीज लॉ पढ़ते समय ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था वहाँ पे, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी को, वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी को पढ़ते हैं तो ये इसको हम एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना मानते हैं, कि जस्ट मिक्सिंग ऑफ गैस इनटू द लिक्विड इज अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन फिनोमेना, ओके। एंड इट इज़ मेंशन्ड ऑल्सो, इट इज़ मेंशन्ड हियर, अगर आपको solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature. When dissolved, the gas molecule are present in liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to condensation. कंडेंसेशन एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ये एक तरह की एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। अगर एक्सोथर्मिक फिनोमेना है तो अगेन ली-चाइटल प्रिंसिपल क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेस लगाने का मतलब प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। स्टेट हेनरीज लॉ मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये भी हम हेनरीज लॉ वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, आई सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। देन
The partial pressure of ethane over a solution containing this gram of ethane is 1 bar. If the solution containing this gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? ये हम आप क्वेश्चन नंबर 2.13 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, मास इज इक्वल टू के इंटू पी। ये भी हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा हुआ है। ओके, मास दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, आप के एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और प्रेशर यहाँ 1 बार दिया हुआ है। ठीक है, तो मास रखिएगा, कितना मास दिया है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। इससे आप क्या निकालेंगे, के एच की वैल्यू निकालेंगे। के एच इज इक्वल टू एम बाई पी आ जाएगा। और इस के एच की वैल्यू हम अगली जो कंडीशन दी हुई है, अगली कंडीशन क्या है, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब ये जो के एच है हम अगली वाली इक्वेशन में, यानी कि एम मान लेते हैं ये m1 से सॉल्व था, तो अब m2 इज इक्वल टू हो जाएगा के एच इंटू पी टू। के एच आप यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ पर वो के एच सेम रहेगा। अब आपको यहाँ पर P2 निकालना है, M2 दिया हुआ है, पुट करिए और फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। देन 2.14, what is meant by positive and negative deviation from Raoult's law and how is the sign delta H mixing related to positive and negative deviation from Raoult's law। ये भी theoretical question है, ये भी हमने Raoult's law में और ideal non ideal solution में पढ़ा हुआ है। अब वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of water. What is the molar mass of the solute? तो यानी कि relative lowering of vapor pressure का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि an aqueous solution of 2% non-volatile solute, 2% का non-volatile solute है, उसने 1.004 बार का प्रेशर जनरेट किया है एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूशन जब बना तो 1.00 बार का हो गया इसका प्रेशर। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट? तो इसने बोला है नॉर्मल, यानी ये एनटीपी की बात कर रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा है, जिसमें जो हमारा प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर का होता है। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब 1.013 बार होता है। ओके, अब क्या है, एन एक्वस सोल्यूशन 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ दिस, यानी कि ये हो गया हमारा P1, यानी कि 1.004 बार, ये हमारा सोल्यूशन का प्रेशर है। और P1 नॉट क्या होगा, क्योंकि 1.013 बार ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर के नॉर्मल प्रेशर जिस पर वाटर बॉयल करता है। अब बात करते हैं, हमसे पूछा है इसने व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हम फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज़ x2। ओके, x2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगेन हम यहाँ पर n2 अपॉन n1 लिखेंगे, क्योंकि n2 को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। n2 क्या हो जाएगा, W2 अपॉन m2, और n1 हो जाएगा W1 अपॉन m1। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, W2 इंटू m1 अपॉन m2 इंटू W1। अब W2 क्या है, M1 क्या है, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये 2% सोल्यूशन बोला गया है। तो यानी कि अगर हमने 2 ग्राम का सोल्यूट रखा हुआ है तो ये हो जाएगा W2 2 ग्राम, और W1 कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम का अगर हम सोल्यूशन मान रहे हैं तो 98 ग्राम का W1 हो जाएगा, जो कि वाटर है। तो ये हो जाएगा M1, मतलब मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा, 18 ग्राम हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। 2% का मतलब क्या होता है, 2 ग्राम 98 ग्राम का पानी हो जाएगा, मतलब वाटर 98 ग्राम, सोल्यूट 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमें पता होता है 18 ग्राम। सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर भी आप P1 नॉट भी मैंने आपको बता दिया, P1 बता दिया, ये वैल्यूज़ पुट करो और इसको सॉल्व कर लो, किसके लिए, N2 के लिए। ओके, इस तरीके से आप 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2.16 Heptane and octane form an ideal solution at 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid components are this and this। ये प्योर कंपोनेंट के vapor pressure दिए हुए हैं। तो अगर हेप्टेन को हम H से और ऑक्टेन को हम O से लिखते हैं तो pH 0 दिया हुआ है, ये हेप्टेन का है, H फॉर हेप्टेन 105.2 किलो पास्कल। देन 46.8 किलो पास्कल हमारा हो जाएगा जब हम ऑक्टेन की बात करते हैं। ओके, PO, ये प्योर कंपोनेंट के। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम, यानी कि हेप्टेन का जो मास दिया हुआ है WH मान लीजिए, कुछ भी सिम्बलाइज आप कर सकते हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए। और उसी तरह से ऑक्टेन का मास जो दिया हुआ है वो हो जाएगा 35 ग्राम। ओके,
तो आप इसका मोलर मास भी निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ हेप्टेन एंड मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। हेप्टेन का फॉर्मूला पता होगा, C7 हो जाएगा और ऑक्टेन का C8 हो जाएगा। अब पूछा हुआ है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, यानी कि पी टोटल आपसे पूछा हुआ है। पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PH प्लस PO। PH और PO कैसे निकलेगा, राउल्स लॉ से निकलेगा, PH नॉट XH प्लस PO नॉट XO। अब ये XH क्या है और XO क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ऑक्टेन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। एक का निकाल लीजिएगा, दूसरा अपने आप 1 माइनस करके मिल जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। तो XH कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ हेप्टेन अपॉन मोलर मास ऑफ हेप्टेन, जो आपने कैलकुलेट किया है उससे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। देन अगर आप XO निकालना चाहते हो तो 1 माइनस XH कर देना। ये वैल्यूज़ आप उठ के यहाँ इन सब सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, ये देखिए मैंने सब लिख रखा है, वैल्यूज़ को पुट करके पी टोटल निकाल लेना। तो ये तो हो गया 16 क्वेश्चन। अब है 17th 2.17। The vapor pressure of water is this at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it. अब आपको कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, मतलब आपको P1 नॉट दिया है इसने, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 12.3 किलो पास्कल ऑलरेडी गिवन है, और आपसे पूछा क्या है, सोल्यूशन का प्रेशर पूछा हुआ है और देन मोलारिटी दी हुई है। ओके, 1 मोलर सोल्यूशन आपको ये बता रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट dissolves in 1000 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का, ये चाहे 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यही तो मोलर का मतलब वो 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब ये हो गया। ओके, तो अब क्या करना है आपको, सीधे यहाँ पर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। ओके, तो हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। ये क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, तो N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ये 1 ग्राम नहीं होगा, ये 1 मोल है, सॉरी फॉर करेक्शन, इट इज़ 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो N2 तो आपको ऑलरेडी यहाँ इस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, 1 मोल हो जाएगा। तो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई N2 तो 1 है, N1 क्या है, मतलब वाटर की बात कर रहे हैं, 1000 ग्राम आपने यहाँ लिया हुआ है और इसका 18 ग्राम मोलर मास होता है, अगेन प्लस 1। इसको सॉल्व करो, क्या निकालना था, P1 नॉट भी दिया है ना, सारी वैल्यूज़ मिल गई आपको, सिर्फ P1 निकालना है, वैल्यूज़ पुट करिए और सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट मूव टू द 2.18 क्वेश्चन। 2.18 कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन to reduce its pressure to 80%। बहुत आसान है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास गिवन है, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन to reduce its vapor pressure to 80%। तो यहाँ पर एक सोल्यूट दिया गया है, इसका मोलर मास पता है, और दूसरा है आपको सॉल्वेंट दिया गया जो कि ऑक्टेन है। तो सारी चीज़ें पहले आप लिख लीजिए। मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, आपको पहले तो वेट निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। M2 दिया हुआ है, इट इज़ 40 ग्राम क्वेश्चन में। देन आपको यहाँ पर ऑक्टेन का भी मास दिया हुआ है, ये हो जाएगा 114 ग्राम, और इसका M2 आप उसके ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है ना आपको, C8H80 ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन। ओके, इससे आप इसका वैल्यू निकालोगे। देन उसके बाद इसमें लिखा है कि इसका जो वेपर प्रेशर वो 80% रिड्यूस हो जाता है। तो मान लेते हैं P10 को हमने अगर 100 माना था, तो इसमें लिखा है कि इट रिड्यूसेस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 80% पे रिड्यूस करता है। तो P1 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब सीधे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। P1 नॉट की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2।
ठीक है। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, कैसे निकलेगा, W2/M2 से निकलेगा। तो ये सब कई बार डिस्कस हो चुका है, इसलिए बार बार करना मुझे उतना समझ नहीं आ रहा, पर आप की सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूँ। ओके, सारी वैल्यूज़ पुट करना है। क्या निकालना था आपको, W2 निकालना था। W2 आप चाहो तो इसको यहाँ से नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। ओके, तो चाहो नहीं भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर आप चाहो तो नेगलेक्ट कर दो और चाहो तो ना करो, दोनों से आपको आंसर मिलने हैं। तो ये तो हो गया 2.18। अब हम चलेंगे 19th क्वेश्चन की तरफ। 2.19 क्वेश्चन, a solution containing 30 gram non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes this. Calculate molar mass of the solute, vapor pressure of water at 298 Kelvin. तो इसने कहा है कि a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly 90 gram water. तो ये हो गया वेट, गिवन मास ऑफ सल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और इस समय इसका वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल। अभी ये प्योर कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा है, ये सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो हम पहली सिचुएशन के हिसाब से जब हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो हमको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, P1 नॉट माइनस P1/P1 इज इक्वल टू x2 का फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो P1 नॉट हमें अभी सॉरी ये भी P1 नॉट है, P1 नॉट हमें अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस P1/P1 नॉट होगा। मतलब हमने को सेपरेट कर दिया, P1 नॉट से इसको डिवाइड किया तो ये 1 आया, इसको डिवाइड किया तो ये ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू x2। अब ये कह रहा है पहली सिचुएशन में कि 1 माइनस P1 पहली कंडीशन में हमको दिया था 2.8 किलो पास्कल अपॉन P1 नॉट, इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, जिसमें 30 ग्राम का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो कि 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व है। तो x2 क्या होगा, N2/N1 प्लस N2। आप यहाँ N2 को नेगलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, सिर्फ N1 होगा। तो N1 अगर है तो यहाँ पे हो जाएगा W2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। W1 दिया हुआ है 90 ग्राम वाटर। M1 आप जानते हो 18 ग्राम क्योंकि वाटर है। M2 आपको नहीं पता है। ओके, यही आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू W2/M2 अपॉन W1/M1। वैल्यूज़ को पुट करिए, सारी वैल्यूज़ पुट करके ये एक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। ओके, इस इक्वेशन को फ्रेम करना है, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेना। तो मैं इसको सॉल्व करके रखा हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। इसकी वैल्यू आएगी जब इसको अल्टीमेटली हम सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2.8 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू MB माइनस 6 अपॉन MB, क्योंकि हम 1 को एक्सचेंज करेंगे, साइड को एक्सचेंज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये तो एक इक्वेशन बनेगी। अब दूसरी इक्वेशन, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आपने 18 ग्राम वाटर उसमें और ऐड कर दिया तो ये प्रेशर 2.9 हो गया। तो ये पहली सिचुएशन हो गया। दूसरी सिचुएशन में 1 माइनस, अब ये प्रेशर कितना हो गया, 2.9 हो गया। तो हम जिसको 2.8 पहले रख रहे थे अब वो 2.9 हो जाएगा। अगेन P10 इज इक्वल टू N2/N1। अब W2/M2, यहाँ पे W1 होता है, यहाँ पर M2 होता है। तो सारी वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ क्या बदल जाएगा, W1, क्योंकि इस सिचुएशन में 90 ग्राम वाटर था, पर दूसरी सिचुएशन में इसने क्या किया है कि उसी सोल्यूशन में इसने 18 ग्राम का वाटर और ऐड कर दिया है। तो अब ये 108 ग्राम हो जाएगा। तो इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, W1 का। सारी वैल्यू सेम रहेगी। M2 के फॉर्म में आपको ये जो है, सॉरी MB नहीं होगा, ये M2 ही होगा। M2 के फॉर्म में ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, और M2 के फॉर्म में इक्वेशन जनरेट होने के बाद दो इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ बनेगी। दोनों को आपस में आप डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको और आपको या मैसेज कर करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करना है बस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन 2.20। A 5% solution of cane sugar in water has freezing point is,
कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। ओके, तो 5% का केन शुगर है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया गया है 271, और आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है, तो डेल्टा टी एफ आप निकाल लोगे। अब तो पहले सिचुएशन पहले आपको क्या करना है, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाना है। तो 5% सोल्यूशन, 5% ऑफ सुक्रोज का मतलब पहले समझना है कि 5 ग्राम का सुक्रोज है, सुक्रोज का मतलब C12H22O11, तो ठीक है 95 ग्राम का इसमें वाटर है। क्लियर? अब हम सीधे आते हैं डेल्टा टी एफ के फॉर्मूले पे, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है। के एफ इंटू एम, के एफ पहली सिचुएशन से आप के एफ को निकालोगे और उसको दूसरी सिचुएशन में आप उस के एफ को रखोगे। ठीक है, तो इसने बोला है कि जब हम मतलब 5% का केन शुगर लेते हैं तो 271 फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इट इज़ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब N2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो टी एफ नॉट कितना है 273.15, चाहे तो आप 273 रखो, चाहो तो 1.15 लगा लो, चाहो तो मत लगाओ। ये कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम नहीं लगाते हैं। के एफ N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू W1 इंटू 1000। ओके, तो W2 दिया हुआ है यहाँ 5 ग्राम, M2 सुक्रोज का 342 आएगा, आप सब जहाँ तक मुझे लगता है सॉल्व करोगे तो 342, एंड W1 95। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा KF। ओके, तो KF की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ पता है। KF W2 कितना दिया है यहाँ पे 5 ग्राम। ओके, फिर M2 जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 342 ग्राम का मोलर मास ऑफ सुक्रोज, देन W1 95 ग्राम हो जाएगा। क्यों 95 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि गिवन मास जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वो 95 का होगा। ओके, तो सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, के एफ यहाँ से के एफ निकाल लोगे। इस के एफ आप निकालने के बाद दूसरा फिर से डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, अब हम M2 सिचुएशन लगाएंगे। M2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब ग्लूकोज की बात कर रहा है 5% ग्लूकोज, तो 5% ग्लूकोज की बात करेगा तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ जो आप यहाँ से निकाल रहे हो, और M2 का मतलब N2 अपॉन ये मोलैरिटी मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो के एफ आप पहले निकाल रखे हो। ग्लूकोज के लिए फिर से 5% बोला हुआ है, तो 5 अपॉन ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, मोलर मास आप निकाल लोगे, ये 180 के राउंड आएगा। तो 5 अपॉन 180 ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। अगेन वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये फिर से आपका 5% का है तो 95 ग्राम का वाटर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1000, इससे डेल्टा टी एफ मिल जाएगा। ओके, तो डेल्टा टी एफ मिल जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, मतलब आपसे टी एफ पूछा है ग्लूकोज को, तो अगेन ये टी एफ नॉट माइनस टी एफ लगा दीजिएगा। टी एफ नॉट 273.15 और टी एफ आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करना है। पहले 5% सुक्रोज की सारी सिचुएशन से आपने के एफ को कैलकुलेट किया, इस के एफ को कैलकुलेट करने के बाद 5% ग्लूकोज में आपने इस के एफ को रख दिया इस वाले फॉर्मूले में। ओके, तो जब इस वाले फॉर्मूले में के एफ की वैल्यू पुट करोगे डेल्टा टी एफ मिल जाएगा। अब डेल्टा टी एफ मिल गया तो डेल्टा टी एफ क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट क्या होता है, टी एफ नॉट होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी। टी एफ नॉट आपको पहले से पता है, टी एफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज़ 273.15 माइनस आपको टी एफ यहाँ से मिल जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene,
1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lower it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1. Then calculate atomic mass of A and B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है कि दो एलिमेंट है ए और बी, जिससे मिलकर दो फॉर्मूले बनते हैं AB2 और AB4. फिर ये कह रहा है कि व्हेन डिज़ोल्व, हम 20 ग्राम बेंजीन में इसको हम डिज़ोल्व करते हैं, 1 ग्राम AB2 अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये 2.3 का फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कॉज करता है, और अगर 1 ग्राम हम AB4 डिज़ोल्व करते हैं तो ये 1.3 केल्विन का डिक्रीमेंट कॉज करता है. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये डेल्टा TF का है क्वेश्चन. डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू हम M का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, तो पहले अगर हम AB2 वाली सिचुएशन को फॉलो करते हैं. AB2 सिचुएशन क्या कह रहा है, डेल्टा TF की वैल्यू 1 ग्राम AB2 लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन. तो ये 2.3 केल्विन हो जाएगा. KF की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है 5.1, और इसमें हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. ओके, तो क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें 20 ग्राम बेंजीन की बात कर रहा है, तो हम रखेंगे 5.1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स. कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो कि गिवन मास आपको 1 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ AB2 ओके इंटू W1 कितना दिया है 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000. ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे किसके लिए, MAB2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज पुट करके. ओके, फिर जो भी वैल्यू आ रही हो, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. नेक्स्ट हम जब AB4 की बात करते हैं तो ये 1.3 कर रहा है डिप्रेशन, अगेन 1.5, देन फिर से N2 अपॉन W1 इंटू 1000 का फॉर्मूला लगाएंगे हम. इसमें भी इन्होंने बोला है कि 1 ग्राम का AB4 डिज़ोल्व हो रहा है, तो N2 कैसे निकलेगा, मतलब इस कंपाउंड के लिए N2 निकालना है. तो गिवन मास अगेन 1 ग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ AB4 मल्टीप्लाइड बाई 20 ग्राम, देन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1000 से. इसको आप किसके लिए सॉल्व करेंगे, MAB4 के लिए सॉल्व करेंगे. ओके, जो भी आंसर आ रहा है. अब ये दो इक्वेशन बनेगी, एक पहले MAB2 के लिए इक्वेशन बनी, देन MAB4 के लिए इक्वेशन नंबर 2 बनेगी. अब MAB2 और MAB4 है क्या, इसके लिए आपको समझना है कि ये दो कंपाउंड से, दो एलिमेंट से मिलकर बना है AB2. तो यानी कि आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, A+2B, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, A+4B. ओके, तो क्या हो जाएगा कि A+2B की जो वैल्यू थी, जो भी आ रही हो, आप वहाँ रख लेंगे, और A+4B की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ रख लेंगे. आप इसको आप लीनियर इक्वेशन की तरह सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इस तरह से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये -2B इज इक्वल टू जो भी इधर आ रहा हो वैल्यू, उससे आप क्या निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे. B निकाल लोगे, इसमें किसी में रख दोगे, A मिल जाएगा, सम कर दोगे तो आपको दोनों का मोलर मास मिल जाएगा. ओके, A एंड B हो गया सॉल्व. नेक्स्ट 22 क्वेश्चन. At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure this. If osmotic pressure of solution is this bar at the same temperature, what would be its concentration? तो अलग अलग सिचुएशन बताई जा रही है इसमें. ओके, तो फटाफट कर लेते हैं, टाइम बढ़ता ही जा रहा है. 2.22 कह रहा है 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर दिस. तो पाई इज इक्वल टू, हमें पता है CRT फॉर्मूला होता है. पाई की वैल्यू यहाँ पर दी है 4.98 बार इज इक्वल टू कंसनट्रेशन कैसे निकलता है, N2/V/RT. तो N2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, कैसे निकलेगा, W2/M2 से निकलेगा, फिर यहाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, देन RT. तो W2 कितना दिया है 36 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ग्लूकोज का अगेन आप निकालोगे वैल्यू तो 180 आ जाएगा. ओके, देन वॉल्यूम इसमें 1 लीटर बोला हुआ है इन लीटर. ओके, देन RT. तो ये तो हो गया 4.98. इक्वेशन नंबर मान लेते हैं ये 1 है. फिर कह रहा है इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 1.52 बार. अब ये कह रहा है अगर इसी की सोल्यूशन, इसी में अगर मान लेते हैं प्रेशर अगर इतना होगा सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, तो कंसंट्रेशन क्या होगी. तो अगेन पाई इक्वल टू CRT लगाएंगे, तो पाई CRT, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. इन दोनों को आपस में डिवाइड करिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है. 4 पॉइंट ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1
बाई 2, तो 4.98 डिवाइड बाई 1.52 इज इक्वल टू 36 RT बाई 180। ठीक है, तो RT कैंसिल, इसको आप C के लिए सॉल्व कर दीजिएगा। ये पता है अपॉन 1 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर इसको आप C के लिए सॉल्व कर दीजिएगा। RT कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। Suggest the most important type of intermolecular attractive interaction in the following pairs, n-hexane n-heptane। ये पूछ रहा है किस तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन, I2NCCl4, इसमें भी वॉन्डरवॉल क्योंकि ये सब नॉर्मल से मॉलिक्यूल हैं। देन NaCl4 एंड वाटर, तो ये एक डाइपोल है और ये जब वाटर में डिजोल्व होगा तो Na+ अलग हो जाएगा, यानी कि आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बनाएगा। देन मिथेनॉल एंड एसीटोन, इसमें आप एल्कोहलिक ग्रुप है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये सब बुक में मेंशन है, आप देख लीजिएगा। एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, ये दोनों डाइपोल है तो ये डाइपोल इंट्रैक्शन करेंगे। ओके, 24 क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन n-octane। तो n-octane एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आपको ये सब सारे कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3OH, CH3CN को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ जाना है। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो इसका मतलब इसमें जितने भी आयनिक कंपाउंड वो डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, KCl है। सबसे पहले आप देखोगे KCl सबसे लेस होगा, देन उसके बाद किसकी नंबर आएगा, देन CH3OH, क्योंकि इसकी पोलैरिटी इससे कम है पर CH3CN से ज़्यादा है, और CH3CN में जो पोलैरिटी है वो साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल जो होगा वो साइक्लोहेक्सेन होगा, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक नेचर का होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है, पोलर पोलर में और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो n-octane जो हमारा होगा वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, साइक्लोहेक्सेन की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम सॉल्युबल KCl, देन CH3OH, क्योंकि इसकी पोलैरिटी CH3CN से ज़्यादा होती है। इस तरह से इसका ट्रेंड बनेगा। नेक्स्ट है, among the following compound identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water। तो फिनॉल जो होगा वो हमारा पार्शियल सॉल्युबल आएगा क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा होता है। टोल्यून ये इनसॉल्युबल होगा क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, कार्बन ही लगा हुआ है इसमें। फॉर्मिक एसिड ये सॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें COOH ग्रुप होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर के साथ कर पाएगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, ये भी सॉल्युबल होगा। क्लोरोफॉर्म जो हमारा है वो इनसॉल्युबल में आएगा। पेंटेनॉल हमारा पार्शियली सॉल्युबल में आएगा क्योंकि इसमें कार्बन की चेन लेंथ 5 कार्बन की हो गई, जो कि वाटर रिपेलिंग होती है, पर OH ग्रुप की वजह से ये वाटर अट्रैक्टिंग है। तो सॉल्युबल तो होगा पर पार्शियली सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज दिस एंड कंटेन 92 ग्राम ऑफ आयंस सोडियम आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2.26। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या है, मोलालिटी पूछा है, स्मॉल m। तो N2/W1 × 1000 का हमारा फॉर्मूला होगा। N2 मतलब NaOH की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा W2/M2 × W1 1000। ओके, W2 क्या है, गिवन मास, इसमें बोल रहा है 92 ग्राम, क्वेश्चन में गिवन है, तो 92 ग्राम Na+ और इसका मोलर मास क्योंकि सोडियम है 23 होगा, और W1 कितना दिया है आयंस पर किलोग्राम, ये 1000 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। आई थिंक ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 मोलर सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज 27 क्वेश्चन। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज दिस, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सोल्यूशन। तो CuS कॉपर सल्फाइड की बातें कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.27। CuS जब ये सॉल्युबल होगा तो ये टूट जाएगा Su+ एंड H2- में। ओके, तो ये 0 हो जाएगी कंसंट्रेशन, और ये SS करके लिखते हैं अगर हम ये कहते हैं कि 100% सॉल्युबल है तो। अब KSP का फॉर्मूला हमने क्लास 11th में ये पढ़ा हुआ है, S × S मतलब S², तो S = हो जाएगा KSP का होल स्क्वायर रूट। देन KSP की वैल्यू हमें इसमें गिवन है, KSP की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻16, तो 6 × 10⁻16 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। यही सॉल्युबिलिटी ही इसकी मैक्सिमम मोलैलिटी हो जाएगी। ओके, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम एस्पिरिन इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। बहुत आसान है, मास परसेंट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट 6.5 होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये और इसका सम 6.5 + 450, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, देन मल्टीप्लाइड बाई 1000। सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा।
2.29 Nalorphine, similar to morphine, is used to combat withdrawal symptom in narcotic uses. Dose of nalorphine generally given in 1.5 milligram, यानी आपको given mass हो जाएगा 1.5. Calculate the mass of 1.5 into 10 power minus 3 molar aqueous solution required for the above dose. यानी molarity दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो और भी आसान है. इसमें मोलैरिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे N2/W1 into 1000 का हम फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो क्वेश्चन में क्या था कि N2 भी आप नलोरफिन का आप M2 निकाल लोगे, मतलब मोलर मास जैसे ये दिया है, मोलैरिटी दी है 1.5 into 10 to the power minus 3 इट इज़ गिवन. ओके, नंबर ऑफ मोल्स W2 अपॉन M2 into W1 into 1000. तो W2 कितना है 1.5 मिलीग्राम, मतलब 10 पावर माइनस 3 अपॉन M2. इसका फॉर्मूला इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है C90 H21 और NO3. सारी वैल्यूज़ को पुट करिए. कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14 और O के लिए 16. सारी वैल्यू पुट करके यहाँ M2 मिल जाएगा. और W1, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये 1 किलोग्राम हो जाएगा, बिकॉज इसमें मोलैरिटी ऑलरेडी बताई गई है. तो इट इज़ 1.5 किलोग्राम, तो ये 1000 ग्राम इंटू 1000. इसको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा. ओके, तो ये 29 क्वेश्चन भी हो गया. नेक्स्ट 30th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 30 क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन मिथेनॉल. ओके, तो इट इज़ मोलैरिटी इज़ गिवन हियर. मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स पता होगा तो आपको अमाउंट भी मिल जाएगा. तो 2.30. यहाँ हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं N2/V इंटू 1000. अगर वॉल्यूम ml में है तो मोलैरिटी इज़ गिवन, इट इज़ 0.15. ओके, N2 आपको अभी मिल जाएगा. यहाँ वॉल्यूम आपको बताया गया है 250 का इंटू 1000. इसको आप N2 के लिए सॉल्व करोगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे. तो N2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस इक्वेशन से N2 मिलेगा, उसको यहाँ पुट करिएगा. W2 निकालना है, M2 आप मोलर मास फॉर्मूले से निकाल सकते हो. 31. The depression in freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloric acetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order given above. Explain briefly. बहुत आसान है, कुछ नहीं इसके अंदर. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें ये आई के ऊपर डिपेंड करता है. आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर, जिसका वांट ऑफ फैक्टर जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका डिप्रेशन होगा. तो वांट ऑफ फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, या तो एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन. तो ये सारे एसिड हैं, ये डिसोसिएट होते हैं. जिसका डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होगा उसकी आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. और इसमें ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड का डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 3 फ्लोरीन की वजह से इसकी एसिडिक बिहेवियर बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा. यानी जो सबसे ज़्यादा आयंस ये बनाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू इसी की आएगी. ओके, तो इस तरह से इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ये सही लिखा हुआ है. ओके, 32 क्वेश्चन. कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 gram of this compound is added to 250 gram of water. Ka is given, Kf is given. तो ये want of factor का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में. फटाफट कर लेते हैं. 2.32 क्वेश्चन में कंपाउंड दिया है 10 ग्राम का है, यानी कि W2 आपको 10 ग्राम दिया गया है. ओके, इसका आप M2 आप फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा. CH3 CH2 CH Cl COOH जो भी आ रहा हो. W1 आपको दिया हुआ है, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. इट इज़ 250 ग्राम. ओके, देन Ka इज गिवन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.4 इंटू 10 to the power minus 3. तो देन Kf इज गिवन, इट इज़ 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके, अब आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF पूछा हुआ है. कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो इट इज़ I KF M. ओके, KF इज़ गिवन, मोलैरिटी भी आप निकाल लोगे, पर I आपको निकालना पड़ेगा. ओके, I निकालने के लिए आप चलेंगे इस इक्वेशन की तरफ जो आपको यहाँ पे फ्रेम करनी है. इक्वेशन क्या है, CH3 CH2 CHCl COOH.
जब ये आयनाइज होगा तो ये बनाएगा CH3 CH2 CHCl COO माइनस H प्लस। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम I निकालना चाहते हैं तो I हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेट से निकाल लें, या गिवन मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास से निकाल लें। या और तीसरा मेथड होता है कि अगर मान लेते हैं ये इनिशियली 1 था, ये 0 0 था, क्योंकि ये 0 0 थे, तो अगर ये फाइनली मान लेते हैं कि ये 1 माइनस एक्स हुआ है तो ये x और x बनेगा आफ्टर डिसोसिएशन। तो I कैसे निकलता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा इसका तीनों का सम अपॉन बिफोर 1 था, कितना आया 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया I। ओके, अब इस I को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Ka का इस्तेमाल करेंगे। Ka कैसे निकलता है? Ka इज इक्वल टू होता है कंसनट्रेशन टर्म्स इन सब की। ओके, तो Cx इंटू Cx प्रोडक्ट अपॉन हो जाएगा और ये हो जाएगा रिएक्टेंट, इस तरीके से। तो Cx इंटू Cx अपॉन C इंटू 1 माइनस एक्स। C इंटू 1, अब ये C क्या है? इट इज़ द कंसनट्रेशन जो आप मोलालिटी निकालोगे यहाँ। ओके, जो मोलालिटी निकालोगे ये वही होगा मोलालिटी। तो ये मोलालिटीज़ को रखिएगा। ओके, x के लिए आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे x की, क्योंकि k आपको गिवन है, k आपको पता है, k की वैल्यू यहाँ पुट करिए, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे एक c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज CX² अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू k जो आपको यहाँ दिया गया है। x के लिए इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, उस x को यहाँ रखेंगे, उससे I मिलेगा और इसी I को आप इस इक्वेशन में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो ये तो हो गया 2.32। अब आते हैं नेक्स्ट 2.33। जो भी क्वेश्चन आपको ना आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। 2.33 19.5 ग्राम CH2F COH is dissolved in 500 gram of water. The depression freezing point of water observed is 1 degree. Calculate the Bantoff factor and dissociation constant of the fluoroacetic acid। ये भी लगभग उसी तरीके से सॉल्व करना है। 2.33 इसमें आपको W2 दिया गया है 19.5 ग्राम। ओके, इसका आप M2 निकाल लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी। देन W1 दिया हुआ है 500 ग्राम। M2 निकाल लेंगे ना, फॉर्मूले से M2 निकालना होगा। देन आपसे पूछा गया I क्या होगा इसका, I Bantoff फैक्टर, और एक और चीज़ पूछी हुई है इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो है डेल्टा TF इसका दिया गया है, डेल्टा TF है 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम I निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओके अपॉन कैलकुलेटेड, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऑब्जर्व कितनी है? 1 डिग्री I है। कैलकुलेटेड हम क्या करेंगे? KF इंटू M लगाएंगे। ओके, KF इज गिवन, क्वेश्चन में दिया होगा, इसमें नहीं दिया, उसके ऊपर वाले में दिया है, आप उसको रख लीजिएगा। KF और M कैसे निकालेंगे? मोलालिटी है ये। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500। तो यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है Ka निकालना है। Ka निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। CH2F COOH gives out CH2F COO minus plus H plus। ओके, अब इसके लिए हमें जब Ka निकालना है तो हमने इसको मान लेते हैं C कंसनट्रेशन थी पहले ये, तो ये 0 0 था, ये C इंटू 1 माइनस एक्स लिखते हैं, ये CX इंटू CX होता है ना। इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, और फिर हम जब Ka निकालते हैं तो क्या होता है? CX इंटू CX अपॉन C इंटू 1 माइनस एक्स। तो Ka निकालने के लिए कंसनट्रेशन तो आप निकाल लोगे मोलालिटी वाला, x कहाँ से निकालोगे? x के लिए क्या करते हैं? हम I का फॉर्मूला लगाते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस एक्स। इसी इक्वेशन के लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है हमने 1 प्लस एक्स। I आपने यहाँ निकाल ही लिया है। इस I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स से आप x निकालोगे, इस x को आप इन जगहों पे पुट कर देंगे तो ये K की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशन भी हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, फटाफट करेंगे, नहीं समझ में आएगा अगेन पूछ सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज दिस। ये वेपर प्रेशर दिया है प्योर वाटर का। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये आपको सीधे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला एक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दिया हुआ है, आपको सोल्यूशन का निकालना है। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में?
P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। P1 नॉट दिया हुआ है 17.535 माइनस P1 निकालना है। ओके, देन 17.535 यहाँ भी रखिए और N2 अपॉन N1 लगा दीजिए। N1 प्लस N2 होता है, पर N2 को हम यहाँ नेगलेक्ट कर रहे हैं, नहीं भी करोगे तो भी आंसर आएगा। ओके, N2 क्या होगा W2/M2 और ये हो जाएगा W1 यहाँ और M1 यहाँ। W2 क्या होगा, क्योंकि ये ग्लूकोज की बात कर रहा है, 25 ग्राम ग्लूकोज दिया है तो 25 अपॉन यहाँ पे ग्लूकोज का मोलर मास 180। W1 कितना होगा, 450 ग्राम दिया है 450 और ये हो जाएगा 80। सॉल्व करिए, इसको आंसर मिल जाएगा। Then 35 question. Henry's law constant for the molarity of methane in benzene is this. ये Henry's law constant दिया है, calculate the solubility of methane in benzene under this. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला P is equal to KH into, यहाँ पर हम कंसनट्रेशन भी इसको रखते हैं और इसको हम मोलारिटी भी रखते हैं। ये Henry's law 3 तरीके से पढ़ाया गया है, तो उसमें बस आपको यहाँ पे C या X जो भी है वो निकालना है, सारी वैल्यूज कोट करके। 36 क्वेश्चन. 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B. ओके, तो ये दो लिक्विड हैं, दोनों के मोलर मास दिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B was found to be 500 टॉर। ये PB0 दिया हुआ है, आपको PA0 निकालना है और P टोटल दिया है। ये भी मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आप कर लोगे, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, अगर हम AB से ही लिखते हैं तो WA दिया हुआ है, इट इज़ 100 ग्राम। MA भी दिया हुआ है 140 ग्राम। देन WB 1000 ग्राम दिया हुआ है। MB मोलर मास इसका दिया है 180 ग्राम। ओके, देन आपको PB नॉट दिया हुआ है, ये 500 टॉर दिया हुआ है। ओके, एंड PA नॉट आपको निकालना है। और एक और चीज़ दी है, P टोटल दिया हुआ है, P टोटल इज इक्वल टू 575 टॉर। तो सारी चीज़ें दी हुई है, P टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे सीधे हम। ओके, तो P टोटल का फॉर्मूला, P टोटल इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB, और PA और PB के लिए हम राउल्स लगा देंगे। राउल्स क्या कहता है, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। PA नॉट निकालना है, PB नॉट आपको दिया हुआ है यहाँ, XA XB आप निकाल लेंगे क्योंकि आपको सारी वैल्यूज दी गई है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज 37 क्वेश्चन, इसको करने की जरूरत नहीं, ग्राफिकल क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछा जाता है। 38 बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ओवर द entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene are this and this. Calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase if 80 ग्राम of benzene is। तो इस क्वेश्चन में फटाफट हम देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें आपको बेंजीन और टोलुइन का प्योर प्रेशर दिया हुआ है, मतलब अगर हम इसको PA नॉट और PB नॉट से समझेंगे तो ये हो जाएगा 550.71 और ये हो जाएगा आपका 32.06 mm ऑफ Hg। ओके, देन बेंजीन का आपको W, अगर हम A से लिखते हैं इसको तो 80 ग्राम हो जाएगा, और इसको हम WB से लिखते हैं तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। देन इसका आप MA और MB निकाल लीजिएगा, बिकॉज इतना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है मेरी भी जो आपको पूरी होगी। देन उसके बाद कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, यानी कि आपको PA इज इक्वल टू YA P टोटल वाला फॉर्मूला लगाना है। उसी तरह से PB इज इक्वल टू YB P टोटल का फॉर्मूला लगाना है। निकालना क्या है, YA एंड YB। PA PB आप निकाल लेंगे राउल्स लॉ के फॉर्मूले से। ओके, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA नॉट XA, उसी तरह से PB हो जाएगा PB नॉट XB। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पता है, XA XB आप निकाल लीजिएगा वैल्यूज़। देन उसके बाद P टोटल कैसे निकालेंगे, P टोटल इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB। तो पहले PA PB निकालिए, वैल्यूज पुट करिए, P टोटल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ एक नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद अप्रोप्रिएट proportion of 20% and 79% by volume at 98 Kelvin. The water is in equilibrium with air at the pressure of 10 atmosphere at 98 Kelvin. If the Henry's law constant for oxygen and nitrogen is this and this, calculate the composition of these gases in water. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। 10 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है ना, तो 10 एटमॉस्फेयर का मतलब आप 20% ऑफ 10 एटमॉस्फेयर 2 आ जाएगा, और 79% 10 एटमॉस्फेयर का 7.9 आ जाएगा। ये दोनों का प्रेशर आ जाएगा। ओके, देन प्रेशर ऑफ जो PN2 होगा उसमें आप KH इंटू XN2 लगा दीजिएगा, और PO2 इसी तरीके से
KH इंटू XO2 लगा देंगे, तो KH तो गिवन है। ओके, देन उसके बाद हमसे पूछा है इसमें कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन द ओके x1 x2 पूछा हुआ है। तो KH तो मिल गया, प्रेशर आपको निकालना मैंने बता दिया, 79% ऑफ 10 7.9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। KH पता है, x2 और XO2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, वैल्यूज फटाफट रखिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिजॉल्व इन 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75. It is also very simple. ये है 2.40। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिजॉल्व इन 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degree Celsius। I की वैल्यू यहाँ दी है, तो pi is equal to ICRT, pi is 0.75, I is 2.47 and N2 upon VRT का फॉर्मूला, तो 2.47 N2 क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 VNRT। R गैस कांस्टेंट रखिए, T 27 है, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 300 केल्विन। देन W2 आपका हो जाएगा, निकालना है ये, और CaCl2 का मोलर मास। ओके, वॉल्यूम 2.5, सारी वैल्यूज पता है, W2 निकालना निकल आएगा। देन 2.41 ये कहता है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट इट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, और इसमें ही बोला है कि कम्प्लीटली डिसोसिएटेड है, तो K2SO4 अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है तो ये 2K प्लस SO4 2 माइनस बनाता है, यानी ये 0 हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन, और ये 2 और ये 1, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी आफ्टर डिसोसिएशन, कितना हुआ 2 + 1 अपॉन इनिशियली कितना था, मान लेते 1 था, तो ये 3 आ जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू ICRT का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, I की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी, कंसनट्रेशन अपॉन वॉल्यूम N2 अपॉन वॉल्यूम R N2 T। तो N2 कैसे निकलेगा, अगेन तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, W2 अपॉन M2 इंटू VRT। W2 मतलब K2SO4 का गिवन मास 25 मिलीग्राम दिया हुआ है, ये इंटू 10⁻³ कर दीजिएगा। मोलर मास आप K2SO4 का निकाल लेंगे, K2SO4 में पोटेशियम का 39 रखोगे, 32 सल्फर का रखेंगे, ऑक्सीजन का 16 रखेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, M2 मिल जाएगा। वॉल्यूम भी इसमें 2 लीटर दिया है, R और T की वैल्यू पुट करिए, 0.082 करके R हो जाएगा, और T की वैल्यू हो जाएगी 25 डिग्री के हिसाब से 298 केल्विन, पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, और इस पूरे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए सॉल्यूशंस, और आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिस। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा लाइक करके शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।